ರಾಮಲಲ್ಲಾ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಎಂಥ ಭವ್ಯವಾದ ಅಲಂಕಾರ, ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಾವಿರಾರು ಗಣ್ಯರು ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಬಟ್ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರಾಮ ಭಕ್ತರು ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸುದೀರ್ಘ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಯಾಚಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ನಾನಿವತ್ತು ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮನಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ, ತ್ಯಾಗ, ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ಕೊರತೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ದೃಶ್ಯ ಏನಿದೆ, ಇದು ಕುಬೇರ ತಿಲದ ದೃಶ್ಯಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ರುದ್ರನ ಸನ್ನಿಧಿ ಇದೆ, ರುದ್ರನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವಂತ ಜಾಗ, ಅದು ದಶರಥನ ಅರಮನೆಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಜಾಗ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ. ಆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತು. ಆ ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಅದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. वही जटायु जो अत्याचार के खिलाफ, वही जटायु जो विषमता के खिलाफ अपने आप को उन्होंने झोंक दिया, अपनी आहुति दे दी. और आप समझिए कि जिस पक्षी को, जिस गिद्धराज को इस समाज में सबसे अधम माना जाता है, क्योंकि वो मरे हुए पशुओं का मांस खा करके अपनी जीवन रक्षा करता है, उसी पक्षीराज को भगवान ने अपनी गोद में रख करके अंतिम विदाई दी. उन्हीं पक्षीराज को अपनी गोद में रख करके भगवान ने वो गति प्रदान की जो उन्होंने अपने पिता स्वयं श्री दशरथ जी को प्रदान नहीं की. वही दशरथ जी जो स्वयं भी मनु के अवतार कहे जाते हैं, वही दशरथ जी जिन्होंने 33,000 वर्षों तक नैमिषारण्य में तपस्या की, माँ शत्रुपा के साथ और कौशल्या और दशरथ के रूप में अवतरित हुए भगवान श्री राम को कर्षित कर लिया उन्होंने. लेकिन भगवान श्री राम ने उन्हें वो गति प्रदान नहीं की, उन्हें वो गति प्रदान की जटायु को. उस जटायु को जो पक्षी होते हुए भी उस पक्षी की भी श्रेणी में सबसे निम्नतम श्रेणी में आता है, उसको भगवान श्री राम ने हरि का रूप प्रदान किया. और हरि का रूप जब प्रदान किया तो जटायु हरि रूप में होकर के भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं. और संस्कृत में अध्यात्म रामायण में जो अद्भुत स्तुति जो जटायु जी ने की है उसका हम वर्णन करेंगे. लेकिन अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए, क्योंकि भगवान शिव माना जाता है कि नरेंद्र मोदी जी के इष्ट भी हैं. ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ, ಈ ದೃಶ್ಯ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದೆ, ರುದ್ರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಟಾಯು ಮೂರ್ತಿಯೊಂದು, ಕಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿಯೊಂದು, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಜಟಾಯು ಸೀತಾಮಾತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಕ್ಷಿರಾಜ, ಆತನ ಕಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯ ಇದು, ಶಿವನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಸಪ್ತ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕೂಡ, ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಗುಡಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಶಿವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. निश्चित तौर से हमारी ही संस्कृति में कहा गया है, धर्म रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है. यही हमारी संस्कृति है जो पूरी दुनिया को चकित कर देती है. यही हमारी संस्कृति है जो पूरी दुनिया के सामने ऐसा रूप प्रस्तुत करती है जो सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है. भगवान शिव ने के बारे में कहा गया है कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको पल भर में ही छूकर, भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, मैं क्या संशय, विश्व के कल्याण के लिए हलाहल को पीना, विश्व के कल्याण के लिए
जो धर्म के प्रति उत्सर्ग का द्योतक है, आज फिर से जटायु श्री अयोध्या धाम में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। वे टीला और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी उस दिव्य प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। महान जटायु जो कि बाद में हरि रूप हो गए, स्वयं भगवान के रूप में वो अपने वैकुंठ धाम में श्री राम ने उन्हें भेजा। आज फिर से वो जटायु अयोध्या में पधार चुके हैं और केवल जटायु को मुझे लगता है कि अनंत आत्माएं इस वक्त अयोध्या की धराधाम में आ चुकी हैं, अवतरित हो चुकी हैं भगवान श्री राम का बाल रूप में दर्शन करने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए और अपनी कुछ न कुछ भेंट भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। अगाध श्रद्धा भगवान श्री राम के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में बहुत पहले सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपने जम्मू कश्मीर प्रवास के दौरान उन्होंने जो पंक्तियां लिखी वो यहाँ बताना उपयुक्त होगा। राम व्यक्ति को नहीं वृत्ति को प्राप्त संज्ञा है। राम हमारा चिंतन, दर्शन, प्रीत, प्रवृत्ति और प्रज्ञा है। राम चिरंतन जीवन मूल्यों का स्वर्णिम शिखर है। राम हमारी संस्कृति के शाश्वत हस्ताक्षर है। राम हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी गति है। राम हमारी शान, हमारा भाल, हमारी स्तुति है। बिना राम के आदर्शों के चरमोत्कर्ष कहा, बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहा। ये उद्गार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशकों पहले खुद किए थे, खुद लिखे थे, उनकी लेखनी है। तो निश्चित तौर से प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सनातन संस्कृति के प्रतीक राम, सत्य शाश्वत सनातन प्रभु श्री राम, भारत के आत्म तत्व श्री राम, जब आज उनका अयोध्या में ही वनवास समाप्त हुआ है, तो यह क्षण पूरे देश, पूरी दुनिया, पूरी मानवता के लिए विलक्षण है। आप समझिए अयोध्या धराधाम में जो उपस्थित हैं शरीर से, उनको कितने आनंद की अनुभूति हो रही हुई, क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं आनंद के संधु हैं। उनकी एक बिंदु से कोटि कोटि ब्रह्मांड आनंद के सागर में निमग्न हो जाते हैं। उनके नाम में ही र आ म में अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के तत्व के रूप में अमृत की वर्षा होती है। और वही श्री राम आज फिर से प्रतिष्ठित हो रहे हैं जन जन में, मन मन में। भगवान नारद की वीणा की स्वर लहरियां अनंत अनंत ब्रह्मांड को इस वक्त श्री राम नाम की धुन से गुंजायमान कर रही हैं। भगवान श्री राम के आराध्य सखा और सबसे बड़े प्रेमी भगवान शिव शंकर अपने डमरू के नाद से तीनों लोगों को आनंदित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वर्ग में हमारे राजा पुरंदर मृदंग और सभी देवता मजीरे, झांझ और घंटे घड़ियाल की सेवाएं दे रहे हैं। आप देखिए जटायु के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और वह जटायु जिन्होंने त्रेता युग में जब रावण माता सीता का हरण करने को हरण किया, सामना किया, घायल हुए, पहले सदगति देने के लिए भगवान श्री राम स्वयं प्रस्तुत हुए। भगवान श्री राम के भुजाओं में जटायु का स्वर्गवास होता है, सदगति प्राप्त होती है। सब मिलना क्षण किसी को नहीं प्राप्त होता। त्रेता युग में एक पक्षी को भी ये ज्ञात था कि अगर स्त्री के शील पर, स्त्री की मर्यादा पर किसी तरीके का हरण होता है तो उसका प्रतिकार किया जाना चाहिए। जटायु आज कलयुग में समूची मानवता के लिए एक प्रतीक है कि पक्षी होकर भी उन्होंने अन्याय का विरोध किया, पक्षी होकर भी उन्होंने हरण का विरोध किया, पक्षी होकर भी उन्होंने नारी शील और सम्मान के रक्षण के लिए अपना सर्वस्व होम कर दिया। वर्तमान समय में मनुष्यों को, नर को, सबको ये जानना चाहिए कि अर्चना की है, करीब 100 फुट ऊंचा है और मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ है। तो इस मंदिर प्रांगण में सिर्फ राम लला ही विराजमान नहीं है, अन्य देवी देवता भी विराजमान है। भव्य मंदिर बनाया गया है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जटायु जी, पक्षी राज जटायु जी की भी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और जटायु के बिना रामायण पूरी तरह से कभी, रामायण की चर्चा जटायु राज के बिना अधूरी है। जी निश्चित तौर पर जटायु राज के बिना ये चर्चा अधूरी है। और फिलहाल ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, रामलला का विग्रह देख रहे हैं, ये अब जीवंत हो उठी है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है और आज का दिन बेहद न्यूज़ फर्स्ट,
ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.